خداوند بھلا ہے، اس کے نام کی تعریف ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بچے بالکل پیچھے بیٹھے جا رہے، بڑے آگے بیٹھیں گے اور بچے پیچھے بیٹھیں گے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آئیے کتاب مقدس میں سے نکالیے گا پہلا سموئیل، خدا کے کلام میں سے پہلا سموئیل کی کتاب، اور اس کا ہم دوسرا باب نکالیں گے کتاب مقدس میں سے پہلا سموئیل، اور باب نمبر 2 ہے، اور اس کی ہم 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک کتاب مقدس کو تلاوت کریں گے، اور ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے۔ یاد رکھیے گا، خادم ہونا یہ ایک بڑی بات ہے۔ خادم ہونا بڑی بات ہے۔ اگر خدا کسی انسان کو نبی کے لیے بلائے، خدا کسی کو رسول کے لیے بلائے، یا مبشر کے لیے بلائے، یا پاسٹر کے لیے بلائے، یا استاد کے لیے بلائے، یہ پانچوں خدمتیں بڑی اہم خدمتیں ہیں۔ آمین۔ یا پھر خدا کے گھر کے اندر کسی بھی طرح کی آپ کی خدمت ہو، وہ عام بات نہیں ہے۔ اگر کوئی جوتے سیدھے کرنے والا ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے گھر کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر کوئی چوکی دار ہے تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں، کیونکہ حضرت داؤد یہ بات کہتے ہیں کہ تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے۔ خدا کے گھر کا دربان ہونا، چوکیدار ہونا، سیکورٹی گارڈ ہونا، یہ اس بات سے زیادہ بڑی بات ہے کہ انسان شرارتیں کرتا پھرے، چگلی یا کوئی برے کام کرتا پھرے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ خدا کے گھر کا چوکیدار ہو جائے۔ مطلب اگر کوئی شخص برائی سے بچنا چاہتا تو وہ خدا کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں یہاں پر محافظ کھڑا ہوں، میں جوتوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا اوپر آ جائے، ڈیکن ہو، مطلب وہ خدا کے گھر کا انتظام کرنے والا ہو، مطلب صفائی کرنے والا ہو، ڈسٹنگ کرنے والا ہو، چیزوں کو سیٹ کرنے والا ہو، عبادت کے لیے ارینج کرنے والا ہو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ راکھ اور خاک اٹھانے والے جب قربانی جلائی جاتی تھی خدا کے حضور، تو راکھ اور خاک کو جو اٹھانے والے تھے وہ بھی لاوی تھے، اور وہ اہم لوگ تھے۔ وہ ہارون کے خاندان سے، مطلب لاوی کے خاندان سے، موسیٰ کے خاندان سے تھے وہ، کیونکہ موسیٰ جو تھا وہ لاوی تھا، اس کا بھائی ہارون لاوی تھے وہ، اور باقی جو خاندان کے لوگ تھے، ان کے جو بھائی تھے، باقی جو رشتہ دار تھے، جو لاوی کا خاندان تھا، پورے کے پورے خاندان کو، پورے کے پورے کے قبیلے کو، کیونکہ 12 قبائل تھے، اور 12 میں سے ایک قبیلے کو خدا نے لیا، 12 قبائل میں سے ایک قبیلے کو لیا اور اس سے اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جب کسی کو خدا کے گھر کے لیے کسی کام کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو پکڑوں اور کہوں کہ آپ نے خدا کے گھر کی یہ خدمت کرنی ہے، یہ اس کے لیے بڑی بات ہے۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا، بلکہ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی جی مجھے آپ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے خدا کے حصہ نکال کے رکھا ہے تو وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ ایک نہیں، پہلے ہی مجھے یہ کرنے دینا تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے جو حصہ خدا کا تھا جب وہ دے دیا تو کہنے کہ آپ مجھے بتائیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام مجھے بتائیں کہ جو خدا کا کام ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ بس ٹھیک ہے آپ نے کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ آپ مجھے کوئی خدمت کا کام دیں گے، کیونکہ اس میں میری برکت چھپی ہوئی ہے، اس میں میری برکت، میری بلیسنگ اس میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بلیسنگ کو حاصل کروں۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ تو جب میں نے بتایا تو انہوں نے
کر کے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اب بتائیے کچھ اور کام بتائیں. میں کرنے کے تیار. میں کہا نہیں یار بھائی یہ کافی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ میرے لیے بڑی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کہ میرے لیے یہ کتنی عظیم بات ہے کہ میں نے خدا کے کسی کام کے اندر حصہ ڈالا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آمین. اگر آپ حضرت سلیمان کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. جب وہ ہیکل کو بنا رہے تھے تو سلیمان نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے گھر کو بنانے کے لیے سوچوں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ لکھا ہے کہ تو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا. لامحدود خدا کے لیے محدود جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لامحدود کو ہم محدود کر دیں کہیں کو. ہاں وہ اپنے لوگوں کی خاطر کہیں اتر آئے محدود ہو جائے تو یہ بڑی اس کی مرضی ہے. ادروائز اسے کوئی محدود کر نہیں سکتا. اگر وہ کہیں محدود جگہ پر آ جائے تو بھی وہ لامحدود ہی ہے. اس کی ذات میں رد و بدل آ نہیں سکتا. پر سلیمان کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی بات ہوگی کہ میں خدا عظیم خدا کے لیے جو الہ میں سے بڑا الہ ہے اور سب سے بڑا ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سوائے بخور کے میں کیا کر سکتا ہوں. میں سوائے خوشبو کو خدا کے حضور جلاؤں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اور ایک بڑی خدمت انہوں نے کی, ایک عظیم خدمت کی. ان کے باپ نے ایک بڑی عظیم خدمت کی. یاد رکھیے گا لوگ تسلیم کرتے جو تسلیم کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں. میں داؤد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد کیا تھے. جب داؤد کو خدا نے 1.5 سالہ سے لیا, وہ بھیڑ چرانے والا تھا, ایک چرواہا تھا. جب اسے اٹھایا, اسے لیا, اسے بادشاہ بنا دیا بنی اسرائیل کا. تو جب اس صنوبر کی لکڑی کے گھر کے اندر وہ گیا, جب وہ پلنگ کے اوپر چڑھا, تو جب اس نے ساری شان و شوکت دیکھی جو کہ اس کے لیے کبھی خواب میں بھی نہیں آئی تھی ایسا ہوگا, تو وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں انسان ہوں, میں ذرہ ہوں, اور تو نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. یہ مناسب نہیں کہ خدا کا عہد کا صندوق جس میں 2 لوہے مرتبان, حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور 5 کتابیں, شریعت کی 5 کتابیں جس میں پڑی ہوئی ہیں, وہ عہد کا صندوق, اس نے کہا وہ خیمے میں پڑا ہوا, کپڑے کے خیمے میں. یہ مناسب نہیں. اس کے اندر غیرت آئی. اس نے یہ لکڑی, سونا, چاندی, لوہا, اس نے سب کچھ پیسہ, سب چیزیں اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دی. اس نے اس وقت کے جو فوجی تھے, آرمی جو تھی, ان پر ٹیکس لگا دیا خدا کے گھر کے لیے. کیا لگا دیا؟ ٹیکس لگا دیا. تو اس پر وہ کام کرنا شروع ہو گیا. اور اسے ایک وقت میں آ کر پتا چلا نبی کے وسیلہ سے کہ تو میرا گھر نہیں بنا سکتا. وجہ, تو یہ خدمت نہیں کر سکتا. وجہ کہ تو نے بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت سارا خون بہایا ہے. تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا سلیمان, وہ میرا گھر بنائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ میرا گھر بنائے گا. تو یہ ایک بڑی عظیم بات تھی. پر داؤد اس بات کو تسلیم کر گیا. کیا کر گیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ جو اس نے خون بہایا تھا قوموں کا, جو کچھ اس نے لڑائیاں کی وہ خدا کے کہنے پر کرتا تھا, یا خدا ہی اسے قوت دیتا تھا اور وہ لڑتا تھا. کیونکہ وہ جنگ کرنے سے پہلے خدا سے پوچھتا تھا کہ خدا میں کیا کروں. اگر آپ صلاح کی کتاب پڑھیں, سیموئیل کی کتاب پڑھیں, تو کئی یہ موقع ایسے آئے ہیں کہ اس نے خدا سے پوچھا ہے کہ خدا مجھے بتا میں کیا کروں, اب دشمن میرے چاروں طرف ہے, میں کیا کروں. تو خدا سے ترکیب دیتا تھا. بلکہ وہ اپنے زبوروں میں وہ کہتے ہیں کہ میں تیری بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تیری بدولت میں سب چیزوں پر, بادشاہوں پر یا سورماؤں پر غالب آتا ہوں. یہ بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ بھی خدمت تھی, یہ بھی خدمت تھی کہ خدا کا گھر بنانا ہے. پر گھر بنانا
یا خدا کے گھر کے لیے کچھ کرنا یہ بڑی بات ہے. اور اگر خدا کسی کو اپنے مذبح پر اپنی حضوری میں اطار پر لا کر کھڑا کر دے کہ تو نے یہاں سے اب لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میری طرف سے میرا کلام سنانا لوگوں کو، یہ بڑی بات ہے. میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایز اے خادم کی ٹریننگ کر رہے ہیں. آپ سیکھ رہے ہیں کہ خادم کو کیا کرنا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے. ہم سیکھ رہے ہیں، ہم کتاب مقدس و الہام کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کی خدمت کیسے کرنی ہے. پر جو کچھ پرانے عہد نامے میں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے، وہ ہماری عاقبت کو بہتر کرنے کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اس سے پہلے بادشاہوں نے، اس سے پہلے نبیوں نے، اس سے پہلے خادموں نے جو کیا ہے، جنہوں نے اچھا کیا ان کے ساتھ کیا ہوا اور جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. تو ان کے کردار سے، ان کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہی ہمارے پاس ایک سبق ہے. آمین. تو یہ جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسی لیے ہے. تو آئیے یہ خاندان کی وہ خاندان جسے خدا نے اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو لیا اور خدمت دی، اس کے تعلق سے ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایلی کاہن اور اس کے بیٹوں کے تعلق سے ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ جو انہیں خدمت دی گئی وہ کیسی عظیم خدمت تھی اور جو انہوں نے کیا اس کا رزلٹ کیا نکلا. آمین. اس کے نتائج کیا نکلے ہم دیکھیں گے. پہلا سیموئیل 2 باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھیے گا. کوئی جلدی سے تلاوت کرے. شاباش. اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے. ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے. کیا تھے؟ شریر. ایلی کائن جو تھا یہ ہارون کی نسل سے ہے. کس کی نسل سے؟ ہارون کی. یاد رکھیے گا لاوی کی نسل سے تو وہ تھا، پر جو سردار کائن ہونے کے لیے جن کو مقرر کر دیا خدا نے فرق کیا. پورے قبیلہ کے لے لیا پر قبیلے میں سے ایک آدمی تو لیا، وہ تھا ہارون، موسیٰ کا بھائی ہارون. اور ہارون کے بعد خدا نے یہ بات کو ڈن کر دیا کہ جو ہارون کی نسل سے سلب سے ہیں آگے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. وہ بنی اسرائیل کا بارے گناہ اٹھائیں گے، وہ بنی اسرائیل کی قربانیاں میرے حضور جلائیں گے، وہ بنی اسرائیل کی دعائیں، مناجاتیں، التجائیں، ہدیے، نذرانے جو کچھ بھی وہ مجھے دیں گے بنی اسرائیل کی وہ ساری کی ساری میرے حضور پیش کریں گے. خدا نے یہ مقرر کر دیا. خدا نے سوچے یہ بات چھوٹی ہے، یہ بات چھوٹی ہے کہ ایک آدمی پوری قوم کا درمیانی ہے خدا کے اور قوم کے درمیان میں. ایلی کائن یعنی کہ ہارون کی نسل یا ہارون یا اس کے بیٹے، یہ اس کا بیٹا ہے. ایلی کائن اس کا بیٹا یا پوتا ہے، اسی کی نسل سے ہے. ایک طرف 11 قبیلے ہیں اور ایک طرف یہ ہیں، اور یہ 11 یا 12 قبیلوں کے درمیانی ہیں. ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف قوم ہے، اور ایک آدمی درمیان میں کھڑا کر شفاعت کر رہا پوری قوم کی. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. خدا کے سامنے، خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا، خدا کے سامنے کھڑے ہونا، بزرگ عظیم خدا کے سامنے کھڑے ہونا، پوتر خدا کے سامنے، وہ جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ سب کے لیے شفاعت کر رہا ہے، مالک یہ کر دے. یہ عام بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اس میں اپنے آپ کو اپنے دیکھنا ہے کہ میں بھی تو کسی کی بہتری کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. آپ اس لیے یہاں پر بیٹھے کہ آپ یہاں سے سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. اس سے زیادہ بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ پالوس کہتے ہیں، پالوس رسول کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے رسول پالوس کہتے ہیں کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. اس سے زیادہ اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. اس سے زیادہ 5 خدمتوں میں سے کوئی خدمت کی جائے، یا ایلڈر کوئی ہو، یا کوئی ڈیکن ہو، یا دربان ہو، بار چوکیدار ہو، یا کوئی جوتے سیدھے کر رہے ہیں، یا کوئی ڈیکن ہو. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. بیٹا یہ جائے ذرا دروازہ باہر نیچے چرچ کا بند کر کے سنیے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے. ایلی کائن کے بیٹے بڑے شریر تھے. وہ کیا تھے؟ شریر تھے.
ایلی کے دو لفظ جن کو ہم دیکھیں گے. ایک ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بدن، جسم. ایک تو یہ شریر ہو گیا، اور ایک شریر اسے کہتے ہیں جو شرارت کرتا ہے. وہ شرارتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھڑا کہاں پہ ان کو کیا گیا کھڑا؟ ان کو جو کھڑا کیا گیا وہ کس کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے؟ قوم اور خدا کے درمیان. کس کے درمیان؟ قوم اور خدا کے درمیان ان کو کھڑا کیا گیا ہے. ان کو برکت کیا دی گئی؟ ان کو بلیسنگ کیا دی گئی ہے؟ ان کو اختیار کیا ملا ہے؟ اختیار یہ دیا گیا ہے کہ وہ قوم اور خدا کے درمیانی ہوں. آمین. قوم اور خدا کے کیا ہوں؟ درمیانی ہوں. آپ اس میں سے یہ مضمون لے لیں. یہ آپ کا مضمون ہے درمیانی. آپ اپنا مضمون آج کا لکھ لیں درمیانی. ایلی کے بیٹے کیا تھے؟ بڑے شریر تھے. وہ شرارتیں کرتے تھے. اور وہ شرارت کیا کرتے تھے؟ ذرا سنیے نا، پڑھیے گا ذرا. انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. سنو، کر کی رہے ہیں؟ قربانیاں دے رہے ہیں، خدا کے گھر میں بھی کھڑے ہیں، مذہب پر بھی آتے ہیں، شفاعت بھی کرتے ہیں، پر ذاتی طور پر کوئی واقفیت نہیں ہے. اس تو بڑی شرارت کی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہے، میں یہاں پر کھڑا ہوں، پر میں خدا کو جانتا ہی نہیں ہوں. جاننے کے دو مطلب ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، پر میں دو باتیں کروں گا آپ کے ساتھ کیونکہ جن کی ہمیں ضرورت ہے. وہ یہ جاننے کا مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے یوں ہونا، یکجان ہونا، ایک بدن ہونا. ایک یہ ہے کیونکہ بائبل مقدس میں جو لفظ استعمال ہوا نا شوہر اور بیوی کے لیے، وہ ہے وہ ایک تن ہوں گے. خدا اور ایماندار یک تن ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. کیونکہ نبی رسول یا خادم ان کے بیچ میں سے اوپر خدا لوگوں کو برکت دیتا ہے. کیا لکھا ہے کہ ہارون بنی اسرائیل کو یوں برکت دیا کرے. خداوند تیری رہنمائی کرے، خداوند تجھے برکت دے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ کرے. یہ قوم کو برکت دینے کے لیے شخص مقرر کیا گیا ہے. مطلب آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے خدا تجھے برکت دے، یعنی کہ تجھے بڑھائے، خدا تیری رہنمائی کرے، خدا تجھے راستہ دکھائے. آمین. خدا اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر کرے، یعنی کہ خدا تجھ پر ظاہر ہو. یہ عام بات ہے، یہ عام بات تو نہیں، یہ بڑی عظیم بات ہے. ٹھیک ہے، بلیسنگ کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں، پر ہے شرارتی. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ شرارت کرتے ہیں. ایلی کے بیٹے بڑے شریر تھے، مطلب ہارون کے پوتے بڑے شریر تھے. دسو منو، شریر آدمی کیا دے سکتا ہے دوسروں کو؟ جس نے شرارت کرنی ہے وہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب ہوگا. پادری، مبشر، ایلڈر، ڈیکن، یہ جو مخصوص کیے جاتے ہیں چرچ کے اندر، ان کو اس لیے کھڑا کیا جاتا تاکہ یہ لوگوں کی مدد کر سکیں. پر اگر پادری یا ایلڈر کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آگے جا کے پڑھیے گا ذرا. ان کے خادموں کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا تاکہ وہ گناہ سے نکلیں، تاکہ وہ خدا کے قریب آئیں، وہ برکت پائیں. پر اگر یہی لوگوں کو گناہ کے اندر جھونکنا شروع کر دیں، جنہیں بچانا وہی کھانا شروع کر دیں، جن کے وسیلہ سے زندگی ملنی ہے، جن کے وسیلہ سے زندگی کی آس ہے، جن کے وسیلہ سے راہ راست کی آس ہے، وہی گمراہ ہوں تو کیا بنے گا؟
اس قوم کا کیا بنے گا یا ان لوگوں کا کیا بنے گا جو جھوٹ سے خود ملوث ہوں. آگے بڑھیے گا جی، نیکسٹ پڑھیں. شاباش. اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت گوشت ابالنے کے وقت ایک سہ شاخہ کانٹا ایک کیا لے کر آتا تھا؟ ایک کانٹا لے کر آتا تھا. تو کس کے لیے وہ آتا تھا؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ اس میں سے ایک پیسے نکالے مال. جی آگے پڑھیے گا جی. اور اس کو کڑھا یا دیگچے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، ہاں جی. اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا ہاں اسے کاہن آپ لے لیتا تھا. اسے کہا ناپ لے لیتا تھا. یوں ہی وہ سیلا میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے یوں ہی سینا میں وہ سب اسرائیل سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے. جو وہاں پر آتے تھے. بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا ہاں جی. اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا ہاں جی. کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، ہاں کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا. ہاں اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا. تو ابھی دے ورنہ نہیں میں کیا کروں گا، میں چھین کر لے جاؤں گا. آئے کتنا ظلم ہے. قربانی کو ناپاک کیا جا رہا ہے. یہ قربانی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ناپاک کیا جا رہا ہے. کیونکہ جیسے ہی قربانی ذبح ہوتی تھی تو ایک حصہ ان کا مقرر کیا ہوا تھا جو کہ سردار کاہن کا حصہ تھا کہ ان کو دے دو. ان کا حصہ پہلے سے مقرر تھا کہ ان کو دے دینا ہے. اور باقی جو جلانے کے لیے یا ابالنے کے لیے خدا کے حضور پیش کیا جاتا تھا اس میں سے نکالنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ جلانے کا یا ابالنے کا جو پروسیس ہے وہ پورا نہ ہو جائے. منع تھا. اگلی بار اس پر میں بات کروں گا کہ کیا کیا خدا نے ان کو یہ کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو. آج صرف ان کی شرارت پر، اور شرارت یہ کیا کرتے تھے کہ وہ قربانی جو جلانے کے لیے یا ابالنے کے لیے جو کچھ وہ کرتے تھے وہاں پر یہ غلط حرکت کرتے تھے، حصہ لے رہے تھے. مجھے یہ بتائیں آج تو ہم قربانی نہیں دیتے تو آج یہ حصہ کیسے کھایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر جب بنی اسرائیل مطلب آج کی جو کلیسیا ہے جب وہ اپنی دائیں کی اور اپنے ہدیے جب اپنے نذرانے یہاں پر لے کے آتے ہیں تو جو کاہن لیتا ہے، کاہن کو دینے کی بھی تو ڈیوٹی ہے نا. اگر پادری ہدیہ لیتا ہے تو پادری کو ہدیہ دینے کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اس نے بھی دینا ہے. یا کوئی غریب یا بیوہ یا یتیم کا حصہ دے دے تو اسے پادری کھا دے. کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب کا ہے، یہ بیوہ کے لیے پیسہ بھی وہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ بیوہ کا حصہ دینا ہے تو یہ بیوہ کا حصہ ہے اور وہ میں اپنے پاکٹ میں ڈال دوں. تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک 500 1000 2000 3000 کی وجہ سے میں اپنے اوپر ایک لعنت لے لوں، اس سے زیادہ مکاری کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ میں کسی غریب کا یا بیوہ کا کسی یتیم کا حصہ کھا جاؤں؟ جو حصہ میرا ہے خدا نے جب وہ مجھے دیا ہے اور جب وہ مجھے مل رہا ہے تو میرا حق ہے کہ میں وہ نہ کروں جو میرا نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے والد صاحب یہ صوفہ پھٹا ہوا ہے، میں اس کو درست کروانے کے لیے پیسے دے رہا ہوں، یہ کروا دیں اور میں اپنی ضرورت اس کو لگا لوں. یا کوئی کہے یہ صاحب یہ بلب یہاں پہ نہیں ہے، میں یا اس کے لیے پیسے دے رہا ہوں، یہ لگا لے اور میں اپنی جیب میں ڈال دوں. یا مجھے کہے کہ میں پینٹ کروانے کے لیے آپ کو پیسے اتنے دے رہا ہوں، کتنے پیسے لگے جتنے لگیں گے یہ میں دے رہا ہوں اور وہ ہم اپنی ضرورت پہ لگا دیں. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ میں اس کے متبادل یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم تو یہاں قربانی نہیں کرتے،
ना हम कुर्बानी जलाते हैं, ना उबालने का कोई सिस्टम है, ना चर्बी जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मुतबादिल क्या है, हम हदिये दाई की, हम पैसे रुपया पैसे तो खुदा के लिए दे ही रहे हैं ना, चीजें तो खुदा के लिए दे ही रहे हैं ना। कोई चीज खुदा के घर के लिए आती है और मैं अपने घर उठा के ले जाता हूँ, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर छाड़े किसी ने दिए तो कहा गया कि ये अपने घर ले जाओ, मैं घर नहीं, ये बहन जो है टेबलों पर आकर डालती, इसको दे, इसकी ड्यूटी है, ये डालती है तो यही डाला करे, इसको दे, ये लेकर जाए और वापस लेकर आए और डाले, हमारी ड्यूटी नहीं है। इसका काम है मजहब पर काम करना, तो वो ही करती है। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी कि मजहब पर पानी रखे या फूल रखे या कपड़े डाले या इशारा पानी लेकर आए या मजहब के जो बर्तन है उनको लेकर जाए और आए। एक ही औरत की ड्यूटी है, वो बहन ट्रीजा है बस, और किसी की नहीं, और ये किसी को करने की भी जरूरत नहीं है, उसी की ड्यूटी है। हाँ, वो नहीं आ रहे और वो किसी को कहती कि आप नहीं कर रहे तो वो करे, पर उसके लिए भी जरूरी है कोई डीकनेस हो, कोई मुबशरा हो या कोई खादमा हो, मखसूस, आम बंदा नहीं, क्योंकि निहायत मुकद्दस ड्यूटी है। निहायत क्या है? मैं जब चर्चेस के अंदर जाता हूं तो मुझे बड़ी उफ़त होती है। मैं अभी ये गया था ईसा नगरी में, फैसलाबाद, मोटरवे के साथ ही है, तो मैंने देखा कि जब मैंने कलाम सुना तो कलाम सुनाने के बाद हादी का गीत गाया गया और छोटी छोटी बच्चियां वो हदिया उठा रही हैं। ये निहायत कुफर है, निहायत गलत है कि छोटे छोटे बच्चे हदिया उठा रहे हैं। क्यों? ये मुकद्दस काम है भाई, ये खिदमत है, एक समझदार आदमी करे, क्योंकि निहायत मुकद्दस पैसा होता है जो खुदा के लिए दिया जाता है, निहायत मुकद्दस चीज होती है जो खुदा के लिए दी जाती है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जब चर्च के अंदर आपको कोई खाना दिया जाता है ना, मुकद्दस चीज, चर्च के अंदर जब कोई शुक्रगुजारी का कोई भी हदिया आता है खाने वाला, तो जितना आपको दिया गया अपने वही लेना है और वो मुकद्दस है, और अगर बुड़बुड़ाए तो वो आपके लिए लानत का सबब बन जाएगा। हालेलुया। और जो देता गया तो रिसीव करके खा जाओ कि मेरे पास से जहान है। लोग तो लड़ते हैं, ये हरकत इंतहाई घटिया हरकत है, ये मुकद्दस चीजें हैं। कई बार ऐसे होता है कि मतलब यहाँ पे मिठाई आती है, वो बांटी जाती है तो खत्म हो जाती, मुझे नहीं मिलती, पर जब मैं कभी डब्बा देखता हूँ थोड़ा सा पीस भी हो तो मैं ले लेता हूँ, और कभी मैंने किसी से नहीं कहा आप तो लेकर आए तो मैंने तो खाई नहीं भाई, वो खुदा के घर में हिस्सा आया था कि बांटने सबको बांट दिया बस, ठीक है, जो हिस्सा मिला है वो करना है। यहाँ पे एक बच्चा आया, पिछले दिनों की बात है, उन्होंने कहा जी सर जी वो एक प्लेट चावल दे दे। मैं कहा चाचा जी नहीं, मैं कहा ठहरो, फिर जो ऊपर बैठे हैं पहले वो खाएंगे, अगर बचा तो आपको मिल जाएगा, वरना मैं कहा तू सीढ़ियां तूते नहीं जाना, क्योंकि तू इबादत में नहीं की। और ये मैं एड्रेस से बात को आप सबकी ड्यूटी लगाता हूं कि जो शख्स चर्च में नहीं आया उनको दाना नहीं देना, उन्होंने कहा थले उतर, तो इबादत में नहीं था तो यहाँ से चावल ना नीचे लेकर जा सकता है ना ऊपर लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये मुकद्दस खाना है और ये खुदा के घर के लिए है, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी दुआ की है, इबादत की है, जिन्होंने उस फैमिली के लिए दुआ की है, बस वो खा सकते, दूसरा आदमी नहीं। हाँ बच गया तो हम दे देंगे, अदरवाइज नहीं। ये निहायत मुकद्दस है, और वो क्या कर रहे थे, वो खुदा के मुकद्दस चीजों में से जो खुदा के लिए था उसमें से हरकत करते थे, और ये बड़ी शरारत थी उनकी, सिर्फ यहां तक उनके हाथ नहीं खुले हुए थे, वो इससे आगे भी बढ़े हुए थे। पढ़िए जरा आगे जी। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर क्या था? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। पढ़ते जाए आगे। क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करते, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन, सर घिनता की मतलब है जी भाई, घिन का क्या मतलब है? नफरत करने लगे। जी जी बोले बोले हैं। और क्या करने लगे? ये चीज से नफरत करना।
घटिया सुनने लग पे घटिया सर वेखो तुसी किन्ना दी वजह तो किन्ना दी वजह तो कायनों की वजह से, खादमों की वजह से, लोग खादमों की वजह से घिन करने लगे। खुदा की कुर्बानी होने का, ये कुर्बानी देनी ही नहीं तो खुदा दे जुर कुर्बानी ना देना इस सूरत जुर्म की है। तो ये बदी कौन करवा रहे थे? पादरी। मिस यूज होने की वजह से ऐसा हो रहा था कि जो चीज जहां पर लगनी चाहिए थी वहां पर नहीं लग रही, तो इसलिए लोग घिन करने लगे, बुरा जानने लगे। आगे बढ़िएगा। पर शमूएल जो लड़का था कतान का फूद पहने हुए खुदावंद के हुजूर खिदमत करता था। सुनिएगा मेरी बात। अब आप दूसरे बाब की 27वीं, हाँ जी आगे 27वीं से हम 36वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी पढ़िएगा जरा जी। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया, एली काइन के पास आया। सुनिएगा, और ये मर्दे खुदा है, इसका कोई नाम नहीं है। यहां पर सिर्फ मर्दे खुदा लिखा है। एक उसके पास मर्दे खुदा था, उसका क्या ख्याल, ये कौन हो सकता है जिन्हें ना आके ना दसिया ना उस तो बाद गल्ला करने तो बाद नजर ही नहीं आया? ये कौन हो सकता है? रिश्ता कहें, खुदा कहें, कोई तो है जो खुदा की बात कह कर गया। पर वो कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िएगा जरा, अब आपको पता चलेगा ये कौन है। जी सुनिएगा जी। और उससे कहने लगा खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, मतलब ये फरिश्ता है या ये नबी है, ये खादिम है, मर्दे खुदा है। आगे, क्या मैं तेरे अबही खानदान पर जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था, जब वो मिस्र में फिरौन की गुलामी में था, जाहिर नहीं हुआ? क्या जाहिर ना हुआ मैं? और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन ना लिया? क्या मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों से चुन ना लिया ताकि वो मेरे काइन हो, ताकि वो मेरे काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाएं, और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाएं। हाँ जी। और मेरे हजूर अफूद पहने, मेरे हजूर अफूद पहने, जो स्पेशली उनका जो लिबास था, हालेलुया, जिन ऐसी कमीज, ऐसा कपड़ा, ऐसा लिबास जिसके ऊपर 12 तरह के नाग लगे हुए थे, 12 कबीलों की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। असल में जो 12 नाग लगे हुए थे ना, 12 जो पत्थर लगे हुए थे सीना बांध के ऊपर, वो 12 कबीलों की जो थी शनाख्त थी, और 12 कबीलों की तरफ से जो है वो नुमाइंदगी की जा रही थी। एक शख्स खड़ा है 12 को खुदा के सामने लेकर, 12 नाग पहनकर सीने में यूं खुदा के सामने खड़ा होना, मतलब 12 खड़े हैं। लॉजिक समझ आ रही जी? मकसद क्या है खुदा का? पढ़िएगा जरा। और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजरानते हैं, हाँ, तेरे बाप को ना दी? तेरे बाप को ना दी। सुनो, जो बनी इस्राएल कुर्बानियां आग से गुजरानती हैं, क्या वो तुझे, मैंने तेरे बाप को ना दी? आगे, बस तुम क्यों मेरे उस ज़बिया और हदिया को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, हाँ, लात मारते हो? क्या मारते हो? तुसी मेरे काम च लात मार दे हो। किदे काम च? अज लात विच काम दे विच काम करने वाले तो थे। खुदा ने जो हदिया अपने लिए मुकर्रर किया है उसको ना देना, उसको खराब करना, उसमें खराबी पैदा करना, ये लात मारना है। क्या है? लात मारना है। कई लात मार देते, बाइबल में कुछ लिखा, लोग करते कुछ है। तो ये लात मारना ही है ना। जो जितना लिखा है उतना करो ना भाई, गलत काम क्यों करते हो? आगे बढ़िएगा। और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है? क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है? आगे, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर हाँ, मोटे बनो। मोटे बनो। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हाँ जी हमेशा मेरे हजूर चलेगा, हमेशा मेरे हजूर चलेगा। पर अब खुदावंद फरमाता है, कि ये बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो। सुनिएगा मेरी बात। यीशु मसीह के आने पर बनी इस्राएल जो लादी, उनका कट ऑफ नहीं हुआ। पता कब कट ऑफ हो गया था? अब
सैमुअल के दौर के अंदर ही खत्म हो गया है। खुदा ने कट ऑफ कर दिया है, लावियों को कट ऑफ कर दिया है। ये नबी कह गया है, मर्दे खुदा ने कह दिया कि खुदा कहता है कि ये बात आप मुझसे दूर रहे, तुम इस काबिल नहीं हो, तुमने मेरे मजहबे को नपा कर दिया है, तुमने मेरी कौम को बागी कर दिया है। लोग बागी हो जाते हैं जब खादिम गलत काम करते हैं, तो लोग बागी हो जाते हैं। तो इनके बुराई की वजह से कौम बागी हो गई है, गिन खाने लगी है खुदा की कुर्बानी से। जब लोगों के साथ खादिम बददियानती करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो याद रखिएगा लोग घिर खाना शुरू हो जाते हैं और लोगों के तमाग उठ जाते हैं, लोगों का भरोसा तवक्कुल खत्म हो जाता है। उन लोगों की वजह से जो अपने आप को जाहिर करते हैं कि मैं एक बड़ा ईमानदार हूं, मैं एक बड़ा दुआगो हूं, मैं एक बड़ा गीत गाने वाला हूं, मैं एक बड़ा कलाम सुनाने वाला हूं, मैं एक बड़ा वर्शिपर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर जब उनकी निजी जिंदगी को देखा जाता है तो इंतहाई घटिया होती है, उनकी जुबान घटिया होती है, उनका बैठना घटिया होता है, उनका उठना घटिया होता है। और लोग कहते हैं बस इतना तो बेहतर ही है, ठीक, बजाय कि वो खुदा के करीब आए, वो खुदा के हुजूर से दूर होते हो। क्यों? क्योंकि लोगों की वजह से आते होता है जो अपने आप को खादिम कहते हैं। पढ़िएगा आगे। क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं, वो जो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा, मैं उनकी इज्जत करूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा बाप मेरी इज्जत करता है पर तुम मेरी बेइज्जती करते हो। फिर लिखा है कि जो इज्जत खुदाए वाहिद देना चाहता तुम वो लेना नहीं चाहते, तुम आदमियों से इज्जत चाहते हो। किनसे? आदमियों से। मनु दसो इस तो उत्ते इज्जत की हो सकती है, तेरे खुदा ने काम च किसी जगह पे खड़ा किया गया, इस तो बड़ी इज्जत की है, ये तो खुदा को तो इज्जत मिल गई है। तू मुबशर है, तू एल्डर है, तू डीकन है, तू यूथ में किसी काम दे विच है, या तू प्रसिद्ध करता है या खुदा के मजहब पर आकर कोई चीज बचाता है, गाता है, कोई खिदमत करता है, ये तो बड़ी बात तेरे लिए हो गई है। तुझे तो और ज्यादा हलीम हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक फैमिली है, बड़े मतलब कमजोर लोग हैं, या उनको आप कह सकते हैं पढ़ लोग हैं वो। पर मैं जब दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि इनको मुकर्रर करके ये खुदा के घर की, यहाँ पर मेरे घर की सफाई किया करें। तो जब मैंने इन दोनों को बताया तो वो रोना शुरू हो गया। मैं कहा अच्छा ऐसा बस सीखा वो खा सकते हैं? मैं कहता तुम करोगे, ये खुदा की मर्जी है, वो कभी मिस नहीं करते। एक दो बार वो आए, हमने चेक किया तो चेक साफ है। बोले मुझे स्पेशली भाई साहब एक की है आपने सफाई की थी है, असी आए से सफाई दी आई थी, मैं चेक साफ सी। मैं कहा बेटा वो मैं सुबह गया था तो मुझे थोड़ा बुरा लगा तो मैंने सफाई कर दी है, मैंने आपका इंतजार किया। वो नहीं सर जी वो देखे ना हमारी ड्यूटी है, आप सब बता दे करें। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने दुआ कर दी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सफाई कर दी। अच्छा अब वो खबरदार रहते हैं, फोन कर देते हैं, कहीं पर वो फंसे हो तो फोन कर देते हैं कि सर जी हम लेट हो रहे हैं, माफ कर दीजिएगा सर जी कैसे होगा, कौन करेगा? मैं कैसा हो जाएगा। इसे कहते हैं खुदा का खौफ, इसे कहते हैं खुदा से मोहब्बत, इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं खिदमत, डरते हुए करना, कोई काम खौफ के साथ करना, कोई काम खौफ के साथ करना कि खुदा कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। ये छोटी बात नहीं है। आगे बढ़िएगा सर। और वो जो मेरी तहकीर करते हैं, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, पर जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे, वो बेकदर हो जाएंगे। क्या होंगे? बेकदर। उन्होंने कोई कदर नहीं रहेगी। जो मेरी कदर नहीं करता उसकी कदर भी नहीं रहे। सुनिए, अगर कोई शख्स खुदा की कदर नहीं करता तो वो बेकदर हो जाएगा, उसकी भी कदर ना रहेगी। अगर कदर करता है तो याद रखिएगा उसकी कदर बढ़ जाएगी। उसे कहने की जरूरत नहीं कि तू मेरी इज्जत कर, मैं पागल नहीं हूं, उसे कहने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद उसकी इज्जत बढ़ा देगा, उसकी इज्जत खुदा बढ़ा देगा। खुदा इंसान को इज्जत देता है, लोग नहीं। लोग ही तो इज्जत देते हैं, खुदा देता है। हालेलुया। ये हमारे पादरी फ्रांसिस रोज हैं, इनको किसी आदमी ने इज्जत दी हुई है?
तो लोगों के सामने पेट पेटाना मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं निकम्मा बंदा, मैं नहीं सही। और खुदा ने उसे कितनी इज्जत दी है, हमारी भी इज्जत है, हमें भी दी है, और मैंने देखा है हमसे ज्यादा उसकी इज्जत है। हालेलुया। साढ़े अगर 10 बंदे कर देना तो 20 बंदे कर देना, तो बंदा कह की रहा होंगे, कहना मैं किसी कम का नहीं, मैं निकम्मा बंदा हूं, मैं नहीं सही। वो बार बार गवाही देते हैं कि मैं कैसे चेंज हुआ, मैं कैसा आदमी था। वो परसों मुझे बता रहे थे कि मैं जादूगरी भी कर रहा था, सीख रहा था। मतलब वो लाइट के नाल ना लाइट बाल के तो कोई कोर्स ही है, मुसलसल यूं देखना था। तो वो कोर्स करने के बाद ये था कि अगर बिल्ली बैठी है सो रही है तो उसको सिर्फ यहाँ से दिमाग से कहना उठ जाना है। अगर तुसी दिमाग से क्या तो फौरन उठ के चली गई तो मतलब है तुसी कामिल हो। कुत्ता सुनता है तुसी नु कहता है तो उठ गया, हो गया। किसी बंदे को यहाँ से कंट्रोल करे दिमाग से। मैं क्या कर सुन तो काम चढ़िया भी है, कह मेरे में बड़े बड़े काम के तेरे पास है। उन्होंने कहा खुदा ने तुहानू मेरी जिंदगी इस्तेमाल किया कि आज मैं राह रास्ते। हालेलुया। और ये गवाही देते थे। जब हम गए थे तो ये बच्चा जो बैठा आप दोनों के सेंटर में, इससे बड़ा बच्चा हमारे साथ है, उससे पूछेगा वो आपको बताएगा कि कितनी गवाहियां वो देता है या किस तरह से खुदा ने उसे इज्जत दी हुई है। हालेलुया। तो इज्जत खुदा की तरफ से है, पर जो मेरी क्या करते हैं, जो तहकीर करते हैं, मैं उनकी क्या करूंगा, वो बेकदर हो जाएंगे, वो बेकदर होंगे। तानू कदर ही नहीं है, समझ नहीं आ रही। खुदा ने तानू किने वसीले खुदा ने किने तानू किथे ने आंदा है तो तुसी उसकी कदर ही नहीं करते। आइए समझे खुदा ने आपको कहां रखा है, आपको उसकी कदर होनी चाहिए कि मुझे खुदा ने जिस जगह पर रखा है मुझे उस जगह की कदर करनी है जहां से आप आगे जा रहे हैं। हालेलुया। उसकी क्या करनी है, कदर करनी है। आगे बढ़िएगा जी बेटा। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू, मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा। क्या करूंगा, मैं तेरा और तेरे बाप के घराने का बाजू क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तेरे बाजू को क्या करूंगा, मैं काट दूंगा। क्यों, आगे बढ़िएगा। कि तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। ये बड़ी लानत खुदा ने दे दी है, क्योंकि ये 98 वर्ष का था। एली कायम 98 वर्ष का होके मरा है, पर खुदा ने इसे कहा कि अब तेरे घर में कोई बूढ़ा ना होगा, सारे जवानी जी लगे जाएंगे, जवानी के दौर में ही मार दूंगा उनको। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है कि यूं बच्चे यूं जवान हो, आपके सामने यूं जवान हुए और वो मर गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि औलाद माँ बाप को कब्र में उतारे। ये लानत है कि माँ बाप अपनी औलाद को अपने हाथों में कब्र में उतारे। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुख और कर्ब क्या हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों को, अपने लगते जिगर को जो है वो कब्र में उतारे। ये चाहिए कि बच्चे अपने माँ बाप को उम्र ज्यादा होने की वजह से, उम्र रसीदा होने की वजह से, पूरी उम्र होने की वजह से जब वो दुनिया से रहत करें तो उनको कब्र में उतारें। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। आगे पढ़िएगा। और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, तू मेरे मस्कन की मुसीबत। ये पता क्या था, खुदा ने इसे क्या बता दिया था कि अहद का संदूक छिन जाएगा, तू ये दुख देखेगा। और एली काइन ने ये दुख देखा, और ये दुख देखने के बाद इसके बेटे भी मर गए, इसकी बहू भी मर गई, ये खुद भी मर गया। एक ही दिन में इनके घर में एक बड़ी लानत आई और बनी इसराइल कौम मुसीबत में पड़ गई। आगे बढ़िएगा जरा। बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मज़बा से
काट नहीं डालूंगा। हाँ, वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए वो तेरी आंखों को बुलाने और दुख देने के लिए रहेगा और और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेंगी। हाँ जी, और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हफनी और फिनास पर नाजिल होगा हाँ, वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो ही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे वो एक ही दिन मर जाएंगे और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा। और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन क्या करूंगा। जब कोई कदर नहीं करता तो याद रखिएगा खुदा से बेकदर कर देता है और खुदा से काट डालता है, मार देता है, हलाक कर देता है, निकाल देता है अपनी हजूरी से और उसकी जगह पर दूसरे को ले आता है। आप यहाँ पर खुदा मुकर्रर कर रहे हैं। खुदा कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या। पढ़िएगा जरा। और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा मैं अपने लिए एक वफादार काहिन मुकर्रर करूंगा जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के वो सब कुछ मेरी मर्जी और मेरी मंशा से करेगा और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। हाँ जी, और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा हाँ, एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सजदा करेगा। ऐसा तो पता क्यों है। ये जो बात है ये दाऊद के दौर में पूरी होती है। दाऊद ने ड्यूटी लगाई काहिनों की। पहले उनकी अपनी चौधरी पर यहूदा का कबीला जब खुदा ने दाऊद को बरकत दी और उसे बादशाह बनाया, दाऊद ने फिर काहिनों की ड्यूटी लगाई, फरीकों की ड्यूटी लगाई कि तुमने अपने अपनी ड्यूटी पर आके ड्यूटी करी, मेरा कर दो और इनके लिए खास चीज सब कुछ मुकर्रर कर दे कि तुम्हारा इतना ये कलाम जो है ये तब पूरा हुआ। वरना एंड करके खा रहे थे, एंड करके जब मार मार के खा रहे थे। और हुआ क्या, खुदा ने फिर मुकर्रर कर दिया, ड्यूटियां लगी और उस ड्यूटी के हिसाब से सारा काम चलता था। आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर देखे ना, पादरी की सैलरी होती है। ये बड़ी जो तंजीमें उनके चर्चेस के अंदर जो है वो पादरी की सैलरी होती है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर लोग उसे अलग से उसके हाथ में देते तो बात अलग है। पढ़िएगा आगे। और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिएगा। जिधर तेन दिता है तो झड़ियां मारी, तू लत मारी, तू बेकदरा रहा, तूने कदर ना की तो हम तू की कहेगा सर मैं दसो मैनू को काम दसो तो ना मुंह नहीं लाना, चल जा तू ही जिन्हों तो खुदा को मुकर्रर किया गया तो तू बेकदरी की थी। आगे ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। आगे सुनिएगा। अब हम तीसरे बाब की पहली आयत से 21वीं आयत तक चलेंगे खुदा के कलाम में से। पढ़िएगा जरा। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था। वो लड़का एली के सामने खिदमत करता था। ये सैमुएल की बात हो रही है। अब खुदा जो है काम करने लगा है। आमीन। सैमुएल, हालेलुया। खुदा अब सैमुएल को जो है वो लेने लगा है। और ये वो दौर था कि खुदा कलाम करना बंद हो गया था। खुदा का कलाम बड़ी मुश्किल से मिलता था, पर अब दरवाजा खुदा खोलने लगा, वो है सैमुएल। आगे बढ़िएगा। और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। आगे और देख नहीं सकता था। हाँ। और खुदा का चिराग अब तक बुझा ना था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था, हाँ जी, लेटा हुआ था। ठीक है। अब सैमुएल लेटता कहाँ है? जहां अहद का संदूक है, यानी कि बाइबल के पास संदूक है। बाइबल संदूक के अंदर वही है, उसे लेटे है। तो खुदा फिर गला करता है। जी बोलिएगा। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। जल्दी से पढ़ते जाएं। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। हाँ। और वो दौड़कर एली के पास गया। वो दौड़कर, उसे तजर्बा नहीं है, ये नया है, न्यू कमर फूल है, नया है ये, और इससे तजर्बा नहीं है कि खुदा कैसे कलाम करता है। खुदा बोले है
ए सैमुअल सैमुअल नासिर के लग शायद उस्ताद ना बुलाया। आगे और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैं नहीं पुकारा। मैंने नहीं पुकारा। फिर लेट जा। फिर जाके लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। हाँ। और खुदावन ने फिर पुकारा सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। हाँ जी। उसने कहा ऐ मेरे बेटे मैं नहीं पुकारा, फिर लेट जा। हाँ जी। और सैमुएल ने हनूस खुदावन को नहीं पहचाना था। सैमुअल ने हनूस खुदावन को नहीं पहचाना था, ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। आगे फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा। हाँ। और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा आगे सो मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावन ने एली तजर्बेकार था। 3 दफा बोले समझ आ गई कि खुदा ने घर करना, कहता जा लेट जा और आगे क्या करना है। उसने उसको सिखाया क्या वो तूने करना क्या है जी। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा हाँ जा लेट रह। जा लेट रह। अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावन फरमा। अगर वो तुझे पुकारे तो कहना ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। हाँ। तब खुदावन आ खड़ा हुआ। तब खुदावंद खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा सैमुएल सैमुएल। हाँ जी। सैमुएल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आगे खुदावन ने सैमुएल से कहा देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ। देख मैं इस्राएल पर ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। हाँ जी। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, मैंने जो उसके हक में कहा, उसके घराने के हक में कहा, मैं पूरा करूंगा। शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा। शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ। क्योंकि मैं उससे बता चुका हूँ कि मैं उस बदकारी के सबब से, उस बदकारी के स्वभाव से जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा। हमेशा के लिए उसके घर का फैसला कर दूंगा। क्योंकि उसके बेटे ने अपने ऊपर लानत बुलाई। उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई। उसने उनको ना रोका। उसने उनको ना रोका। इसलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई। हाँ जी। कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी जबिया से साफ होगी, ना तो किसी कुर्बानी से धोई जाएगी, ना हदिया से। ना हदिया से। और सैमुएल सुबह तक लेटा रहा। सैमुअल सुबह तक लेटा रहा। अब उसने खुदावन के घर के दरवाजे खोले और उठा और उसने खुदावन के घर के दरवाजे खोले और सैमुएल एली पर रोया और जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा ऐ मेरे बेटे सैमुएल। अब एली को पता, क्योंकि एली तो तजर्बेकार, उससे पता कि खुदा ने इससे कलाम किया है। और उससे वो पूछने लगा, क्योंकि एली को अपना खटका लगा है कि काम तो साढ़े चंगे नहीं, उससे अपना खटका लगा हुआ था, क्योंकि खुदा उससे कलाम कर चुका था। खुदा उससे बता चुका था कि अब तेरे घर की सफाई हो जाएगी, अब मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तो खुदा ने जब उससे कलाम किया तो उससे इस बात का अंदाजा था कि वो चाहिए कि वो उससे पूछे। तो उसने फिर उससे पूछा। जी बोलिएगा, जरा बोलिएगा। तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा ऐ मेरे बेटे सैमुएल। ऐ मेरे बेटे सैमुएल। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। तब उसने पूछा वो क्या बात है वो क्या बात है जो खुदावन ने तुझसे कही है। वो क्या बात है जो खुदावन ने तुझसे कही है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। उस्ताद से कितनी मिन्नत कर रहे हैं, मिन्नत करता हूँ, बता दे खुदा ने क्या कहा है जी। उसे मुझसे पोशीदा ना रख। उससे मुझसे पोशीदा ना रख। अगर तू कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही है छिपाए तो खुदा तुझसे ऐसा ही करेगा। खुदा तुझसे ऐसे होने का जो ने मेरे बारे क्या है ना, अगर तू लगा है ना तो फिर तेरे नाल वेंदी होएगा। अगर तू झूठ बोल रहा है, चाहे गाल सा दसीदा सच्ची गाल दस जी। आगे बल्कि उससे भी ज्यादा तब सैमुएल ने उसको रत्ती हाल बताया। तब सैमुएल ने उससे रत्ती हाल बताया और उससे कुछ ना छिपाया। उसने कहा वो खुदावंद है जो वो भला जाने सो करे। उसने कहा वो खुदावंद है जो वो भला जाने वो करे। तस्लीम कर ले, तस्लीम करना जरूरी है कि वो खुदावंद है, वो मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है, उसका कोई इरादा डाल नहीं सकता। लिखा कि इंसान का इरादा फेल हो जाता है, पर खुदा का कोई इरादा डाल नहीं, खुदा का कोई इरादा नहीं डालता।
खुदा का कोई इरादा नहीं टलता। आगे और सैमुएल बड़ा होता गया। आमीन। चौथे बाब की 11वीं आयत को जरा पढ़िएगा, 11वीं से 18वीं तक हम पढ़ेंगे जी, फिर आगे बात करते हैं जी। और खुदा का संदूक छिन गया। हाँ सुनिएगा क्या लिखा है, खुदा ने नबी के वसीला से क्या कहा कि तू मकदस की मुसीबत देखेगा। तू क्या करेगा? तू मकदस की क्या करेगा? मुसीबत को देखेगा। खुदा ने कहा, ये निकाल उससे, आपने पीछे पढ़ा है। खुदा ने से कहा कि तू ये मुसीबत देखेगा कि तुझसे ये छिन जाएगा। और इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? क्योंकि जब अहद का संदूक इस्राएल की जमात में जाया करता था तो ये ललकारते थे, और सामने वाली जो कौम थी वो डर जाती थी, और वो कहते थे कि क्या हुआ है, ये क्यों ललकारे मार रहे हैं? तो उनमें से आवाज आती थी, खुदा आया है। आगे आगे पढ़ो जी, आगे। और खुदा का संदूक छिन गया। खुदा का संदूक छिन गया। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनास मारे गए। क्या हुआ? दोनों बेटे क्या हुए? मारे गए। और बिन्यामीन का एक आदमी लश्कर में से दौड़कर हाँ अपने कपड़े फाड़े और सर पर खाक डाले हुए हाँ जी, उसी रोज सैला में पहुंचा। हाँ जी। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा एली राह के किनारे पर कुर्सी पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कंबन की करने हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि करतूत ठीक नहीं हुई, काम खराब होना है। उसके अंदर खौफ था और दिल कांप रहा था। दिल क्या कर रहा था? उधर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका सी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था और दिल उसका कांप रहा था खुदा के संदूक के लिए, क्योंकि उससे सूझ गई थी कि काम खराब हो गया है। क्योंकि उसने आवाजें सुनी थी, रोने की आवाजें उसे सुनने को मिल रही थी, चीखों पुकार चल रही थी, क्योंकि पूरी कौम में मातम छा गया था, क्योंकि अहद का संदूक छिन गया था और इसके दोनों बेटे मार दिए गए। और बनी इस्राएल कौम ने एक बड़ी हार खाई, एक बड़ी नाकामी हासिल की। गए तो वो लड़ने के लिए। अगर आप चौथे बाब को शुरू से पढ़े, ये ऊपर से अगर पढ़े, मैं तो 11वीं से पढ़ाया ना, अगर आप ऊपर से पढ़ते आए तो वहां पे लिखा है कि जब ये लड़ने के लिए गए तो जब अहद का संदूक वहां पर गया तो ये ललकारना शुरू हो गए, जो मैंने बातें पहले आपको बताई हैं। और जो दुश्मन थे उनमें से ये आवाज निकली कि ये क्या है, ये क्यों ललकार रहे हैं? तो एक ने जवाब दिया, खुदा आया, अहद का संदूक आया, इसलिए ये ललकार रहे हैं। पर दिन पैड़े सन, उन्हें जो और बंदे बोले, उन्होंने कहा मर्द बनो। गैर कौम के लोगों ने कहा मर्द बनो, मर्द बन जाओ, आज मर्द होने का हक अदा करो। इन्हें तो चढ़ जाओ, इन्होंने मार दियो। तुसी की समझ दो, एक जुरत होना दिसी कि जानो दी जा रही सी। खुदा उनके साथ नहीं था, खुदा उनके साथ नहीं था, बल्कि खुदा दुश्मनों की तरफ था। दुश्मनों को उसने जरूरत दे दी थी कि वो इनको मार दे, इनका बेड़ा गर्क कर दे। और अहद का संदूक क्या हो गया? छिन गया। आगे क्या लिखा है जी? और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया, हाँ, तो सारा शहर चिल्ला उठा। सारा शहर चिल्ला उठा। और एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर कहा, एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर कहा, इस हुल्लड़ की आवाज, इस हुल्लड़ की, इस मातम की, इस रोने की वजह क्या है? जी क्या लिखा है? इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मायने है? क्या मायनी है? और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और आकर एली को क्या सुनाया? हाल सुनाया। और एली 98 वर्ष का था। एली 98 वर्ष का था। और उसकी आंखें रह गई थी। उसकी आंखें रह गई थी। और उसे कुछ नहीं सूझता था। उसे कुछ नहीं सूझता था। तो उस शख्स ने एली से कहा, उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूँ। मैं फौज में से आता हूँ। और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूँ। मैं आज ही फौज के बीच में से भागा हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे क्या हाल रहा?
ऐ मेरे बेटे क्या हाल रहा? उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इसराइली फलस्तीनियों के आगे से भागे इस्राएली फलस्तीनियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खूनरेजी हुई, लोगों में बड़ी खूनरेजी हुई, और तेरे दोनों बेटे हुफ्नी और फिनास भी मर तेरे दोनों बेटे मर गए हैं। आगे और खुदा का संदूक छिन गया। खुदा का संदूक भी छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र सुना, बेटे मर गए ने, ठीक है, पर जब संदूक के बारे में सुना तो क्या हुआ? तो वो कुर्सी पर से पछाड़ खाकर कुर्सी पे से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसका क्या हुआ? गर्दन टूट गई। उसकी गर्दन टूट गई और वो क्या हो गया? मर गया। वो मर गया। वो क्या हुआ? मर गया। मर गया। उसका वो क्या हुआ? वो मर गया। इसके साथ ही पीछे इसकी बहू बच्चे से थी, और जब उसे पता चला कि उसका शौहर और बाकी सारे मर गए हैं, उसका ससुर भी मर गया है, तो उसके यहाँ बेटा पैदा होना, तो उसका बच्चा पैदा हुआ, साथ ही बच्चा पैदा, साथ ही वो मर गई। घर में मातम, कौम में मातम, लोगों में मातम छा गया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने खुदा की शरीयत को रद्द किया था। क्या किया था? खुदा की शरीयत को रद्द किया था। तो इसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इस स्टोरी में से हमारे सामने क्या आया है कि खुदा का खादिम होने का अजीम बात है, पर अजीम बात है, इसके साथ खतरनाक बात भी कलाम में लिखा है, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, खतरनाक भी है। अगर खादिम बनना अजीम बात है, अगर खादिम अपनी जगह से हट जाए, अपनी खिदमत से हट जाए, तो उसके लिए खतरनाक भी है। उसके लिए क्या है? खतरनाक क्या है? कि वो मारा जाएगा। वो क्या किया जाएगा? वो क्या किया जाएगा? वो मारा जाएगा। ये किताबें मुकद्दस है। ये क्या है? जरा निकालें खुदा के कलाम में से गिनती की किताब 18वां बाब निकालिएगा जरा। गिनती की किताब 18वां बाब, जी निकाला है? पहली आयत से पढ़िएगा। शाबाश बेटा, पढ़े। और खुदावंद ने हारून से कहा, और खुदावंद ने हारून से कहा कि मुकद्दस का बारे गुनाह मुकद्दस का बारे गुनाह तुझ पर, मकदस का क्या लफ्ज़ लिखा है? मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों तुझ पर और तेरे बेटों पर और तेरे आबाई खानदान पर, तेरे आबाई खानदान पर होगा। क्या होगा? हाँ जी, आया कि नहीं बारे गुनाह? तुझ पर, तेरे बेटों पर, तेरे आबाई खानदान पर आया कि नहीं? सुने मेरी बात को? बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों पर, तेरे आबाई खानदान पर होगा। आगे, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों पर हो। आगे, और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत वो करें। तेरे साथ होकर तेरी खिदमत किया करें। पर शहादत के खैमा के आगे तू शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। ये जो जगह है ये खास जगह है। आमीन आमीन। इतने हर बंदा मुंह चौके नहीं आ सकता। आज तो लोग पादरी ने पूछना दोबारा नहीं करते। पादरी बहुत कर सकता है, पादरी बना काम बहुत कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं, पर भाई तरतीब के साथ। एक तरतीब है। क्या है? तरतीब को क्रॉस नहीं करना। अगर तरतीब को क्रॉस किया जाएगा तो नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। यहां पर हमारे चर्च में एक बच्ची आती है, उसने नबिया को क्या कहा?
اس نے نبیہ کو یہ کہا کہ میری سنو, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوا, میری سنو. اس نے میری بیٹی کو کہا بچی نے کہ جب زیادہ لوگ ہوں تب مجھے موقع دیا کر, میں کہ اس کو دینا ہی نہیں. اور اسپیشل سے مل کے میں نے کہا میں کہ آج کے بعد اگر آپ نے یہ بات کہی نا تو آپ کو بالکل بھی موقع نہیں ملے گا. بچوں کو آگے لانا ہے پر کسی ترتیب سے لانا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر بندہ یہاں پر اوپر آ جائے, ہر بندہ یہاں سے ڈلیور کرنا شروع کر دے. یہ مذہبہ ہے, خدا کے مذہبہ کی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ترتیب کے ساتھ آنا ہے, وقت کے ساتھ آنا ہے. جب جس کی باری ہے اسی وقت وہ آئے, ادروائز وہ نہ آئے. اور مذہبہ بنانے کے لیے اپنا دماغ اور اپنا دل اور اپنا بدن اور اپنے کپڑے ان کا نیٹ ہونا ضروری ہے. یہ معیار ہے اس کا. اینی جینے مرضی منہ چوکے ہوتے آ جاؤ. شریعت کے مطابق جو مذہبہ پر آتا ہے اس کے بدن پر نظر نہیں پڑنی چاہیے پہنچے سے. جب وہ یوں کر آئے, پاؤں اٹھائے تو اس کی نظر نیچے, اس کی نظر نہیں, اس کا نہیں آنا چاہیے کوئی چیز. حیادار لباس کے ساتھ آنا ہے, سب ہر طرح کی پاکیزگی کے ساتھ آنا ہے. روحانی پاکیزگی, دماغ سے غصہ پچھو غصہ چڑھے ہے, اندر خاصت ہے, غصہ ہے, تیتھے آگے جناب کلام نہیں غصہ سے نہ آ جا رہے ہیں, یہ مار دے گا. جہاں پر لوگوں کو برکت کے لیے ہمیں بات کرنی ہے, نہ کہ لوگ ہماری وجہ سے بیزار ہو جائیں. خدا کا کلام ضرور سنانا ہے پر ہمارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. خدا کے کلام کا رویہ لوگوں کے پاس جانا چاہیے, اپنے چہرے کا رویہ نہیں جانا چاہیے. اور بندے کا رویہ ایک بار, دو بار, تین بار پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا رویہ ہے کیا. ایک کلام سنانا ہے یا 60 گھنٹے ہے. غصہ کر رہے ہیں تو غصے کے لیے بھی بائبل ہے. کچھ غلط ہو رہا تو بائبل مقدس میں سے پڑھ کر سنانا ہے, یہ لکھا ہے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے گا. بارے گناہ اتنا آسان نہیں ہے. جی آگے. وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں. وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں. وقت وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں. مقدس کے ظروف اور مذبح کے قریب نہ جائیں. تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ. تا نہ ہو کہ وہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ. کئی دفعہ لوکی خدا دے خاتم دے واسطے لاگنا سوپن جاندے نے. ایک بندہ انہوں کی کہہ رہا ہے کہندا جی گل دسیو نہ اگر تانوں پوچھن تے تسی ایندے کیوں. ویکھو مطلب پادری نوں کلیسیا دا بندہ جھوٹ سکھا رہا ہے کہ تو میرے واسطے جھوٹ بول رہا ہے. میں کہ میں تمہیں دساں گا کہ میں تو سچ گل کرنی کہ جھوٹ بولنا ہے. تو وقت دسے کہ انہوں نے پوچھا کہ میں صحیح جواب دیا گا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے انہوں نہیں کہنا. اور میں کرنی ہی یہ نہیں کرنی تو انہوں کیوں کہن دے ہیں. تم انہوں تیار کر رہے ہیں کہ تو سچ بولی تاکہ تو میرے کپڑے اتر جان. ضرور ہے خاموش رہے. اگر چنگی گل نہیں کر سکتا بندہ بہتر منہ باندھ رکھے اپنا. ٹھیک ہے. کئی بار لوگ آپ کے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں. موسیٰ کا بیڑا گر کرنے کا سبب کون بنے؟ بنی اسرائیل قوم. خدا نے کہا تم ان کے کنار میں نہیں جا سکتا. اس کی وجہ آگے لکھا ہے اس لیے کہ تم نے میری نہیں لوگوں کی بات کی تھی. اس واسطے لوگوں نہیں ویکھنا, خدا نو ویکھنا ہے. خدا دی گل کرنی ہے. آمین. منہ رکھنی نہیں کرنی, صحیح بات کرنی ہے. جی آگے بڑھیے گا. سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے. کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک آنے جڑا مخصوص نہیں ہو غیر ہے تو غیر کا حق نہیں کہ وہ مذبح جائے. اے
मखसूस लोग ने, डीकन, एल्डर, मुबशर, पास्टर, मुबशर मखसूस लोग जिन्होंने तेल ला के मसा किया गया लोगों के सामने खुदा की हजूरी च, वो लोग ही मजबा ध्यान, कोई हाथ लान दूजा बंदा हाथ ना लाए। आमीन। एल्डर साहब की ड्यूटी है हत्या गिनने की, दूसरे बंदे की है ही नहीं। और ये गिनने की भी खुद मैंने लगाई, क्योंकि वो जो हदिया जब गिना जाता है हमारा, तो उसमें से लिखा जाता है कि इसमें से दाई कितनी बनती है, 10वां हिस्सा कितना बनता है, क्योंकि डायरी में लिखा जाता है। इसलिए वरना मैं चाहूँ तो मैं ठीक है, और मैं कुछ मेरे से ठीक है रहने दे, पर नहीं, हिसाब किताब रखा हुआ है, क्योंकि मैंने भी तो बरी होना है ना। मेरे पास आ क्या रहा है, मेरा क्या बनता जो मैंने आगे देना है, और मैं इसमें से हिस्सा निकालता हूँ, अपनी दाई की निकालता हूँ, यतीम और बेवा के लिए जो मैंने देना होता है वो निकालता हूँ, और फिर जो मैंने खुदा के काम के लिए बाहर जाना होता है उसके लिए निकालता हूँ, और फिर जो जरूरत होती है उसके हिसाब से फिर अनाउंसमेंट भी करता हूँ कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अभी मैं एक अनाउंसमेंट आपके सामने कर देता हूँ। 9 तारीख को ईद वाले दिन, यानी कि जो इतवार आ रहा है, ईद फसा जो है वो बुध वाले दिन है। रियल डेट जो है ईद फसा, जिस दिन यीशु मसीह कुर्बान हुआ था सलीब पर, वो 5 तारीख है। 6 तारीख जो है ईद फतीर है, यीशु का दफन और कफन जो है, और जो संडे है वो यीशु मसीह के जी उठने की ईद है, पहले फलों की ईद, रियल डेट। आज सारा दिन मैंने यही किया है, इसकी पूरी तैयारी मैंने की हुई है, लिखा हुआ सारा। ये मैंने बुरे वाला में पैगाम देना जाके यहाँ पे भी दूंगा और बुरे वाला में भी देना जाते हैं, और हो सकता है इसके साथ साथ ईसा नगरी में भी फैसलाबाद भी दिया जाए, क्योंकि 10 तारीख को बड़ी मीटिंग है, वहाँ पे जाना है। लोग मुझे बुला रहे हैं पर उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम इबादत का अरेंज करेंगे, आएंगे आप खुद, ये हम नहीं कर सकते। जब आप 3 से 4 लोग आएंगे, वो कहते नहीं हमारी ख्वाहिश है कि पादरी साहब फ्रांसिस साहब आए, हम चाहते हैं कि बेटा आपका योएल उसके साथ बजाए। खैर वो तो हमारी मजबूरी है, योएल के अलावा किसी को देखे जाएंगे फिर पैसे देने पड़ेंगे, तो योएल बजाएगा, कलाम सुनाने के लिए मैंने वहाँ पे जाना है। तो बड़े प्यासे हैं लोग, उनके पास पैसा नहीं कि पैसा खर्च कर सकें, तो इसलिए जाना है। 9 तारीख को इतवार वाले दिन जो है वो आप सब ने खुसूसन हदिया देना, उससे पहले आपको इन्वेल्प दिए जाएंगे। उस इन्वेल्प के अंदर आपने इंजील की मुनादी के लिए हदिया डालना है, सारे खानदानों में जो भी हो सके डालना है, क्योंकि आगे 10 तारीख को सुबह या 9 की रात को हमने जाना है इंजील की मुनादी के लिए। तो ये बड़ी अजीम खिदमत है। आमीन। आगे बढ़िएगा, क्या लिखा है जी? और तुम मक़दस और मज़बत की मुहाफ़ज़त करो, ताकि आगे को फिर बनी इस्राएल पर कहर नाज़िल ना हो। बनी इस्राएल पर कहर नाज़िल ना हो। और देखो, मैंने बनी लावी को, जो तुम्हारे भाई हैं, बनी इस्राएल से अलग करके खुदावन की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया। हाँ जी, ताकि वो खैमा इत्माद की खिदमत करे, ताकि वो खैमा इत्माद की खिदमत करें, और मज़बत की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मे है। हाँ जी, आगे। तो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, आगे। वहाँ तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूँ। कहानत का शर्फ तुझे और तुझे बख्शता हूँ। और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावन ने हारून से कहा, देख, मैंने बनी इस्राएल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। आगे। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहराकर मैंने तेरे ममसू होने का हक क्या कह दिया है? ठहराकर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। आगे। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए
वो तेरा होगा। आगे उनके सब चढ़ावे यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुकद्दस ठहरे। आगे और तू उनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना, मर्द ही मर्द को उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। हाँ जी और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी और हलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। हाँ जी इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। हाँ जी तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। आगे अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूं यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावन के हुजूर लाएं तेरे होंगे। आगे तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इस्राएल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावन के हुजूर गुजरानते हैं, जितने पहलोठी के बच्चे हैं, ख्वाह वो इंसान के हों ख्वाह हैवान के, वो सब तेरे होंगे। आगे पर इंसान के पहलोटों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना। आगे। और नापाक जानवरों के पहलोटे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं। आगे और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीना के हों तो उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मकदस की मिशकाल के हिसाब से जो 20 जेरे के जीरा 20 जीरा हाँ जी जीरा की होती है, हाँ जी चांदी की 5 हाँ जी मिसकाल देकर। ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। मिसकाल निकालें सर, देख लें। तकरीबन 27-28 किलो होता है जी। पढ़िएगा आगे जी। चांदी की 5 मिसकाल लेकर छोड़ देना। हाँ जी आगे लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पलोटों का फिदिया ना लिया जाए। हाँ जी वो मुकद्दस हैं, तो उनका खून बलवा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावन के हुजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हलाई हुई कुर्बानी का सीना और दहनी रान तेरे हैं। दहनी रान वैसे तो आपको बता रहा हूं कि हिस्सा क्या है, सारा कुछ नहीं, हिस्सा दिया खुदा ने। आगे जितनी मुकद्दस चीजें बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावन के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। आगे और खुदावन ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, ना उनके दरमियान इनके जमीन तुझे नहीं मिलेगी। आगे क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूँ। बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मेरा हिस्सा कौन है? खुदा। जो कुछ खुदा का वो मेरा है, जो कुछ खुदा का वो खालू का है। आमीन आमीन। तो पौलुस से कहते हैं कपड़ा पहनना, ओढ़ना, खाना और पीना, बस पादी ਨੂੰ कोई फिक्र नहीं होना चाहिए, और बाकी फिक्र होना चाहिए काम करना खुदा दा। हालेलुया। अगर दुनिया का इदा माल इकट्ठा करने लगेगा फिर अपनी ईमान का जहाज डोबलेगा। ठीक है, अगर दुनिया का माल इकट्ठा करने चक्कर में पाएगा ना तो फिर क्या होएगा? मनु किसे क्या पादी सब का की हो गया, कुछ जोड़ जमा कर लो कि करी आ रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, लोग देंदे भी कख नहीं। मैं कह ना तेरे खुदा तो दे रहे ना मैनू वो दे दिया कि तू मेरा काम कर देना, कर रहे हैं। तो मैं कह मेरा तो टेंडर खुदा ना पास होया, जिधर मेरी जेब खाली तो मैं कुछ भी नहीं करना, मैं घर। पर अगर तू मुझे देता जाएगा तो मैं उन सब के पास जाऊंगा जो गिरे हुए हैं, वो जो कमजोर हैं। हालेलुया। जाए मेरी गैर वजूद के पास फ्रांसिस के पास, वो कहेंगे कि वाकई इस बार ये जो हमारा टूर है गिरे हुए लोग खड़े हुए हैं,
लोगों के आंसू बह रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदा ने आपके वसीला से हमें बहाल कर दिया है। आमीन आमीन। अगर लोग गिरे हुए लोग जिन्होंने खुदा के काम को छोड़ दिया था, खिदमत को छोड़ दिया था, जो बड़े बाबरकत थे, वो अपने ही घर में लानती बन गए और अब दोबारा वो बहाल हो गए, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? एक आम बात है कि कोई गिरा हुआ शख्स आपके वसीला से बहाल हो जाए, आपके पैसे की वजह से, आपकी दुआ की वजह से, आपके जाने की वजह से, आपकी मेहनत करने की वजह से कोई शख्स खड़ा हो जाए, ये छोटी बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि खादम छोटी बात नहीं है। खुदा और इंसान के जो दरमियान में शख्स है वो आम शख्स नहीं है, क्योंकि वो कफारा दे रहा होता है। हालेलुया। तू बारे गुनाह उठाएगा, तुझ पर, तेरे बेटों पर होगा, तेरे भाई खानदान पर होगा। लोगों का बोझ उठाना ये आम बात नहीं है। पादरी खुदा के खादम जो होते हैं वो लोगों की सफाई करते हैं, मतलब वो गुनाह को उठा रहे होते हैं, खुदा उनको माफ कर दे, इसके गुनाह माफ कर दे, ये छोटी बात है। खुदा इसे बरकत दे दे, ये छोटी बात है। तिमोथियस के नाम पर उसका खत निकालिएगा जरा, दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी तरफ 5वीं आयत को जरा पढ़िएगा, अगर मुझसे गलती ना हो। क्या कर रहे थे? खुदा एक है, क्योंकि खुदा एक है, खुदा और इंसान के बीच, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, यानी कि मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया के मुनासिब वक्तों पर, ताकि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। उसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी गरज से मैं इसी गरज से मुनादी करने वाला रसूल है। गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें मैं गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह, ठीक है, मैं मुकर्रर हुआ। याद रखिएगा, कलाम में क्या लिखा है? खुदा एक है, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है। जैसे खुदा का बेटा यीशु मसीह खुदा और इंसान का दरमियानी है, इसी तरह पादरी जो है वो भी खुदा और कलीसिया के दरमियान में है। वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में खुदा के सामने दरखास्त पेश करता है। पहला थेसलोनिकियों तरह निकालिएगा 5वां बाब और उसकी जरा 15वीं ऐसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। पहला थेसलोनिकियों, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, खबरदार कोई बदी के एवज बदी ना करे। जी आगे, बल्कि हर वक्त नेकी के दर पे रहो, हर वक्त नेकी के दर पर रहो, आपस में भी और सबसे, आपस में भी और सबसे भी हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की, मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूहों को ना बुझाओ, क्या 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 ना करो? रूहों को ना बुझाओ। क्या लिखा है? रूहों को ना बुझाओ, रूहों को जलाना है, आग लानी है, दीवा बालना है, बुझाना नहीं। लिखा है अभी तक खुदा का चिराग नहीं बुझा था। मज़बा पर हमेशा आग जलती रही, आग नहीं बुझानी, दीवा नहीं बुझाना। खातमा का काम है आग लानी, आग बालनी, रूहानी आग लानी, ताकि लोग खुदा के करीब रहन। लोगों का बेड़ा गर्क करने वाली आग नहीं, बेड़ा उतारने वाली, बेड़ा बनाने वाली, बेहतरी के लिए आग लगानी है। हालेलुया जी, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोहब्बत की आग लगानी है। क्या लगानी है? मोहब्बत की। जब मैं और पादरी सलीम और छोटा बच्चा जब हम वापिस आने लगे तो जो खादिम थे ना उनके आंखों में आंसू थे। मैं कहा क्यों आया थे? कहते रहे ना जाओ। मैं कहा नहीं, इन्ना इन्ना आना थोड़े वास्ते ठीक है, थोड़ा थोड़ा आना मैं कहा थोड़े वास्ते बहुत बेहतरीन है। मैं कहा कोई गल नहीं, 20 दिन ने फिर आ जाना अगले महीने की। मैं कहा फिर 10 दिन थोड़े कोल, कहते हैं ठीक है। बुझे हुए लोग बहाल हुए। हालेलुया, रूहों को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, नबूवतों की हकारत ना करो,
सब बातों को आजमाओ, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, जो अच्छी हो उन्हें पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, आप ही बिल्कुल तुम्हें पाक करे। तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी रूह और जान और बदन किसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज ठीक है, रहे। पूरे पूरे और बेऐब क्या रहे? महफूज रहे। महफूज रहे। हालेलुया। हालेलुया। एली काइन के बेटों ने अपने आप को महफूज न रखा, अपनी खिदमत को महफूज न रखा, अपने ओहदे को महफूज न रखा, उसकी वजह से उनका बेड़ा गर्क हो गया। पर याद रखिएगा, हमने इन चीजों से सीखना है कि हमने महफूज करना है अपने आप को, अपने बदन को, अपनी रूह को और अपनी जान को खुदा उनके लिए पूरा पूरा महफूज करना है, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का सोबन दे जाएं। आमीन। हम चिराग का काम करें। हालेलुया। 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 ते भाई चिराग बालन वास्ते तेल की जरूरत पैंदी है, तो तेल लियाण वास्ते पैसे लगते हैं, ते पैसे वास्ते कमाई करनी पैंदी, मेहनत करनी पैंदी है। आमीन। आमीन। ते मेहनत करने की ताकत खुदा देता है, अपने तो कोई फखर नहीं है, सारे पासे तो खुदा है, तो फिर अपनी आकड़ का दी है? भाई फ्रांसिस अपनी गल रखा दी है, सब कुछ खुदा है, तो खुदा दा जो दिता मुकद्दस है। हालेलुया। हालेलुया। साड़ी दाई की मुकद्दस, साड़ा हदिया मुकद्दस, साड़ी शुक्रगुजारी मुकद्दस, साड़ी दुआवां मुकद्दस, सादा छात चुकना मुकद्दस, ऐ जो भी खुदा दे तिलावा से कर रही हो मुकद्दस है। एक आम कलीसिया मसीह का बदन है, इससे ज्यादा मुकद्दस की हो सकता है? पहला पत्रस निकालिए जरा, पहला बाब 13 आयत से जरा पढ़े, क्या लिखा? इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर, होशियार होकर उस फजल की ठीक है, उस होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, जो तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार फरजंद होकर, फरमाबरदार फरजंद होकर, अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे अपने क्या करो, अपने क्या करना है? जहालत के जमाना की जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे। अच्छा, जो जहालत पहले थी, तौबा करने से पहले जो बातें थी, जो खिदमत में मखसूस होने से पहले जो आदतें थी, वो अब नहीं होनी चाहिए। पहले चुगलखोर सी, तौबा करने तो पहला वो नहीं होना चाहिए। तौबा करने तो पहला इल्जाम तराशी करने वाला सी नहीं होना चाहिए। तब्दीली क्यों? क्योंकि हमें चेंज कर दिया गया, हम चेंज हो चुके हैं। हालेलुया। 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 पहले जैसे नहीं। जहालत वाली चीजें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम फरजंद हैं, अब हम खुदा के बेटे हैं, खुदा के खादिम हैं, खुदा के बंदे हैं, ईमानदार हैं, मसीह का बदन है, वो हमारा सर है। आगे, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, हाँ, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। इस तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक इस तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो? पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। क्योंकि लिखा है पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। शरीयत में लिखा है मैं खुदा हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ, मैं गयूर हूँ, मैं पाक हूँ, तुम भी पाक बनो। हालेलुया। हालेलुया। ये शरीयत में लिखा हुआ है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम हो। मैं पाक हूँ इसलिए तुम भी क्या बनो? पाक बनो। आगे, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, हाँ जी, जो हर एक के काम के मुवाफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, बगैर तरफदारी के इंसाफ के साथ इंसाफ करता है, इंसाफ करता है, तो तू अपनी मुसाफरत का जमाना तो तुम अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी के सोने चांदी से नहीं,
जरिया से नहीं हुई, जरिया से नहीं हुई, बल्कि बेऐब और बेऐब और बेदाग, यानी मसीह के पेश कीमत खून से, यानी कि मसीह के बेशकीमत खून के वसीला से। उसका इल्म तो बनाए आलम उसका इल्म तो बनाए आलम से पहले था, मगर ज़हूर आखिर ज़माने मगर उसका ज़हूर आखिर जमाने में हुआ है, कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए, ताकि उसके वसीला से हम खुदा पर ईमान लाएं, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, जिसने उसे मुर्दों में से जलाया। आमीन, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। जिसने उसे मुर्दों में से जलाया। कहने का मतलब ये है कि एली के बेटे और एली को खुदा ने इसलिए मुकर्रर किया, हारून को इसलिए मुकर्रर किया, लावियों को इसलिए मुकर्रर किया, ताकि लावियों के वसीला से बनी इस्राएल कौम खुदा को जाने। मुझे और आपको इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि हमारे वसीला से लोग खुदा के बेटे को, खुदा को जाने। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर चाहते हैं कि खुदा हमारे वसीला से जाहिर हो, तो जरूरी है कि हम अपने आप को पाक करें और एली के बेटों की तरह गलती नहीं करनी। अगर वैसी गलती हो गई तो बाजू काट दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा और मुसीबत होगी और अहद का संदूक यानी कि खुदा छीन जाएगा, खुदा चला जाएगा। फिर रोना, मातम और लानत और कपाहत और शामत हमारी जिंदगी में होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बरकत और सलामती और सदाकत मिल जाए और हम हाथ उठाएं और लोगों को बरकत मिले, लोग बहाल हों, तो जरूर है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। हमें जरूर है कि हम हमारा चिराग, अगर हमारा चिराग अंदर का जलता है, हमारे अंदर रोशनी है, तो फिर हम दूसरों को भी रोशनी दे सके। अगर हम खुद नमकीन हैं तो दूसरों को भी हम नमकीन कर देंगे। लिखा है कि नमक का दायमी आयत, नमक का दायमी आयत हमेशा का आयत माना गया है। हालेलुया। दायमी आयत को कायम रखने के लिए जरूरत है हमारे जिंदगी में यीशु का नमक हो, हम नमकीन हो, हमारे अंदर स्वाद हो, हमारे अंदर टेस्ट हो, लोग हमें सुनने को पसंद करें। आखिरी बात करूंगा फिर हम दुआ करते हैं। जब मैंने 215 में खिदर वाले में जब कलाम सुनाया, तो कलाम बड़ा सख्त था जो खुदा ने मुझे दिया था। सुनाना मैंने कुछ और था, पर वहां पर जाकर चेंज हो गया, तो मैंने वहां पर उसको चेंज किया। फिर बहुत सारे हवाले रूप उसने मुझे दिए, मैंने वो पढ़ाए और लोगों ने ये कहा कि ये कलाम हमारे लिए था। लोगों ने कहा कि हमें कलाम मिला है, खुदा ने कलाम किया है हमसे, लोगों ने कबूल किया। और वहां पर दूसरे गांव से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पास आए, हम आपको बुलाते हैं, आइए। मैंने कहा हम आएंगे। तो आप यूं समझे कि 20-25 तारीख के बाद अगले महीने एक बड़ा प्रोग्राम फिर वहां खिदर वाले में गांव है वहां पर होना है। मुझे और फ्रांसिस फिरोज साहब को बुलाया गया वहां पे, कलाम की खिदमत के लिए मुझे बुलाया गया, प्रोसेस के लिए उनको बुलाया गया है। तो लोगों ने कलाम को कबूल किया और उससे ज्यादा सख्त जो है वो फैसलाबाद अंदर जो है वो ईसा नगरी कॉलोनी जो है वहां पर था। वहां के लोगों के मुझे फोन आया, पादरी का फोन आया कि लोगों ने कहा है कि पादरी साहब को फिर बुलाएं कि वो हमें फिर कलाम सुनाए। अगर हमारे अंदर चिराग जल रहा है तो लोगों के अंदर भी जल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वहां के खादमों ने कहा कि पादरी साहब को बुलाएं कि हमें कलाम सुनाया कर, खादमों पर। फिर उन्होंने बुलाया है। तो बात करने का मतलब ये है कि चिराग पैसा कैसे जला है या कैसे जलेगा या कैसे जलता है? दुआ से। जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो मैं तो दुआ कर रहा हूं, खुदा ये मुल्क के अंदर मुझे इस्तेमाल कर, तो खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। खुदा के सामने मैंने एक और बात भी रख दी। मैंने कहा खुदावंद जरूरत के मुताबिक, मैंने खुदावंद को ये कहा, खुदावंद अगर तू तेरी निगाह में अगर ये बात अच्छी है कि मेरे पास गाड़ी है तो फिर हमें अपनी दे, फिर हमें अपनी दे। और इससे पहले मैंने चर्च बिल्डिंग के लिए खुदा के सामने दुआ की है, यह मैं कर रहा हूँ। पहले चर्च बिल्डिंग को रखा है, फिर इसको रखा है। और सबसे बड़ी बात चर्च बिल्डिंग या गाड़ी से ज्यादा बड़ी बात जो है वो ये खुदा के सामने रखी कि मुझे मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों तक तेरा कलाम लेकर जाऊँ, कलाम मुझे दे और मैं लोगों तक लेकर जाऊँ। हालेलुया। जब हमारे अंदर चिराग जल रहा है, जब हमारे अंदर नमक है, जब हम नूर से मामूर हैं, तो हम दूसरों को भी रोशनी देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर एली कायन के बेटों जैसे अगर हमारा किरदार है या हम अगर वो काम करेंगे तो फिर हम कभी भी दूसरों के लिए बरकत का सबब नहीं बल्कि भीड़ का सबब बन जाएंगे।
लोग हमसे घिन नहीं, हमारी वजह से लोग खुदा की हजूरी में आने से घिन न खाएं, बल्कि लोग हमारी वजह से कहें कि हमने जाना है वो बाबरकत है। सब बोले हालेलुया, हमने बाबरकत बना है। खुदावंद आपको बरकत है। तो हासिल कलाम ये है कि हम दरमियानी हैं और दरमियानी हमेशा फिदिया देते हैं। अगर दरमियानी गलत हो जाए तो खुदा उनको खत्म कर देता है और उनकी जगह पर दूसरे ले आता है। दरमियानी हमेशा पिछते हैं। अगर हम खादम हैं तो हम पैसा लगाने से, दुआ करने से, रोजा रखने से, कलाम सुनाने से, सफर करने से, खुदा के लिए कुछ भी करने से अपना हाथ पीछे ना करें, बल्कि आगे बढ़ते ही जाएं, क्योंकि वक्त करीब है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।